دوستو پرانے وقتوں میں بغداد میں خلیفہ ہارون الرشید کی حکومت تھی۔ خلیفہ بڑا انصاف پسند آدمی تھا۔ اگر کسی کو کوئی پریشانی ہوتی یا کوئی ظلم کا شکار ہوتا تو وہ خلیفہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا۔ خلیفہ کا دروازہ ہر خاص و عام کے لیے ہمیشہ کھلا رہتا تھا۔ دوستو خلیفہ ہارون الرشید محل کی چھت پر اپنے درباری وزراء کے ہمراہ ایک مرتبہ عید کا چاند دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مطلع بالکل صاف تھا، اس لیے چاند بڑی آسانی سے نظر آ گیا۔ پورا بغداد شہر عید کی تیاریوں میں لگ گیا۔ بازاروں میں دکانیں سجنے لگی، خرید و فروخت کی تو دھوم ہی مچ گئی۔ کیا غریب کیا امیر، سب خوشی سے جگمگا رہے تھے۔ دوستو خلیفہ ہارون الرشید کی طرف سے غربا اور یتیموں کو مفت میں اناج اور کپڑے دیے جاتے تھے تاکہ کوئی بھی مستحق آدمی عید کی خوشیوں سے محروم نہ رہ سکے۔ مگر کیا کوئی سوچ سکتا ہے کہ ایسی خوشی کے موقع پر بغداد شہر میں ایک ایسا آدمی بھی موجود تھا جو بیچارہ اپنی بد نصیبی کا رونا رو رہا تھا۔ دیکھا جائے تو یہ بات سچ بھی تھی۔ شہر کے قریب ایک پرانا کھنڈر تھا جو کسی زمانے میں کسی بادشاہ کا محل ہوا کرتا تھا، لیکن اب اس کی خستہ حال دیواریں شاندار ماضی کی داستان سنا رہی تھیں۔ دوستو کھنڈر کے نزدیک ہی ایک سوکھا ہوا بند فوارہ بھی تھا جو شاید کبھی پانی کی ٹھنڈی فواریں پھینکتا کرتا تھا۔ فوارے کے پاس ہی ایک چبوترا بھی بنا ہوا تھا، اس کے پاس ایک گول لال پتھر بھی گڑا ہوا تھا۔ اسی لال پتھر پر وہ بیچارہ آدمی کھڑا ہو کر چلا رہا تھا اور اپنی غربت بیان کر رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میں کئی دن سے بھوکا پیاسا ہوں، لوگوں دیکھو میری حالت کو آ کر دیکھو۔ دوستو بیچارے کے گال کی ہڈیاں بھی صاف نظر آتی تھیں، بدن پر لباس کے نام پر میلے کچیلے چتھڑے لٹک رہے تھے۔ اس کا نام عبداللہ تھا۔ وہ روزانہ سوکھے بند فوارے کے پاس آتا، گول لال پتھر پر کھڑا ہوتا اور بغداد والوں کو اپنی بد نصیبی کے قصے سناتا رہتا تھا۔ وہ کہتا تھا، سن لو بغداد کے لوگوں، اس روح زمین پر میں سب سے بدقسمت ترین انسان ہوں۔ میری زندگی اس بند فوارے جیسی ہے جو صرف نظر تو آتا ہے مگر کسی کام کا نہیں ہے۔ میرے تو کوئی بھی کام نہیں آتا، نہ میرے پاس ایک بھی دینار ہے، نہ میرے پاس پہننے کو اچھے کپڑے ہیں۔ دوستو تکلیف کے مارے بیچارے کے منہ سے آہیں نکلتی تھیں۔ اس نے عید کے چاند کی طرف اشارہ کر کے کہا، اس خوشی کے موقع پر مجھے تو دانہ پانی بھی نصیب نہیں ہے۔ میری زندگی اس ویران کھنڈر میں ہی گزر جائے گی۔ دوستو وہ رب تعالیٰ سے کہنے لگا، اے میرے خدا، اے سارے جہان کے مالک، دیکھ لے تیرا بندہ کتنا بد نصیب ہے۔ اس نے اپنے سر پر ہاتھ مارا، لیکن دوستو رستے سے گزرنے والے راہگیروں نے اس کی طرف بالکل بھی دھیان نہیں دیا۔ سب لوگ اسے اگنور کر کے وہاں سے گزر جاتے تھے۔ لیکن ایک دن کا واقعہ ہے کہ ایک اللہ والے درویش کا وہاں سے گزر ہوتا ہے جو گا رہا تھا، کیا بھروسہ زندگی کا، آدمی تو پانی کا بلبلا ہے۔ اس غریب عبداللہ کے کانوں میں جب اس کی آواز پڑی تو وہ فوراً درویش سے مخاطب ہوا، اے انسان، مگر یہاں تو زندگی بند فوارے جیسی ہے جس میں پانی ہی نہیں تو بلبلا کہاں سے آئے گا۔ دوستو درویش نے یہ سن کر کہا، مایوس مت ہو اللہ کے بندے، میں دیکھ رہا ہوں تیرے دن جلد ہی پلٹنے والے ہیں۔ اتنا کہہ کر وہ آگے بڑھ گیا۔ ایک دن معمول کے مطابق وہ اسی جگہ پر فوارے کے نزدیک گول لال پتھر پر کھڑا تھا اور اپنا دکھڑا رو رو کر لوگوں کو سنا رہا تھا۔ ایک زنانہ آواز نے اسے چمکا دیا اور کہنے لگی، تم کاہل اور کامچور آدمی ہو۔ عبداللہ کی بیوی گلنار اور آلود نظروں سے اسے گور رہی تھی۔ پھر وہ بولی، دنیا میں کام کرنے کے لیے کسی کام کی کمی نہیں ہے، دیکھ میں اکیلی ان بچوں کا پیٹ پال رہی ہوں۔ دوستو گلنار کے پیچھے 4 غلیظ کپڑوں میں ملبوس لڑکے کھڑے تھے جو آپس میں جھگڑا کر رہے تھے۔ اے نادان آدمی، کم سے کم اپنی اولاد کا تو خیال کرو، میری پریشانیوں میں مزید اضافہ نہ کرو۔ دوستو عبداللہ بیزاری سے کہنے لگا، جا چلی جا، میں اپنی حالت بدلنا چاہتا ہوں، میری حالت کب بدلے گی؟ تو اس کی بیوی کہنے لگی، کام چور اور سست آدمی، اس طرح بولنے سے حالتیں نہیں بدلتی، کوئی ڈھنگ کا کام کرو۔
खलीफा के दरबार में जाओ ताकि वो तुम्हें किसी काम पर लगा दे, या दरबार में पहुंचकर कोई इस तरह की राह निकालो ताकि तुम्हारा काम बन सके। इस तरह रास्ते में खड़े होकर लोगों को बदनसीबी की कहानी सुनाने से तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। अपनी बर्बादी के तुम खुद ही जिम्मेदार हो। हाथ पांव हिलाओ। अल्लाह ताला ने तुम्हें 2 हाथ दिए हैं, 2 पांव दिए हैं, सोचने के लिए दिमाग दिया है। तुम काम कर सकते हो, पैसा कमा सकते हो। तुम्हारे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। दोस्तों, शौहरत ने अब्दुल्ला पर अपने दिल की भड़ास निकाली तो अब्दुल्ला कहने लगा, तू समझती है कि मैं काहल और कामचोर हूँ? अरे पगली, मेरी ये हालत देखकर कौन खुदा का बंदा मुझे काम देगा? देख मेरी तरफ, क्या मैं बोझ उठाने के लायक हूँ? मैं तो कमजोर और नातवा आदमी हूँ। जब से मैं इस हैरत अंगेज और अनजाने ख्वाब को देखा है, मेरा तो चैन सुकून गारत हो गया है। मैं बेहाल हो गया हूँ। नींद मेरी आंखों से बड़ी दूर चली गई है। रातों को जब भी बिस्तर पर सोता हूँ, मुझे वही अनजाना ख्वाब नजर आता है। ये ख्वाब शायद मेरी जान ले लेगा। मैं खुद भी बड़ा तंग आ गया हूँ। अब तो मैं दिन में भी किसी दूसरी चीज के बारे में नहीं सोचता। अब तो मुझे किसी भी सूरत काहरा चले जाना चाहिए। शायद मेरी तकदीर वहाँ ही बदलेगी। दोस्तों, गुलनार कहने लगी, ए बेवकूफ आदमी, तुम काहरा जाओगे, सिर्फ ख्वाब देख रहे हो। इस तरह कुछ नहीं होगा। ख्वाब तो झूठे होते हैं जिनका सच्चाई से कोई भी ताल्लुक नहीं होता। मैं खूब समझती हूँ तुम अपने बीवी बच्चों से पीछा छुड़ाकर काहरा बाग जाना चाहते हो, मगर कान खोलकर सुन लो, मैं तुम्हें खबरदार करती हूँ, हमें छोड़कर भागने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, वरना मैं खलीफा हारून रशीद के सामने तुम्हारी शिकायत लगा दूंगी। वो तुम्हें जेल में डाल देगा और फिर तुम्हारी सारी जिंदगी जेल की काल कोठड़ी में गुजर जाएगी। और हाँ, एक और बात कह देती हूँ कि अपना ये ख्वाब मुझे अब मत सुनाना, समझे? इतना कहकर गुलनार अपने ठिकाने की तरफ वापस लौट गई और उसके पीछे चारों बच्चे भी चले गए। दोस्तों, गुलनार बेचारी मट्टी के बर्तन बनाती, उन्हें बाजार में फरोख्त करके जो भी बचा कुचा मिलता था उससे अपने बच्चों का पेट पालती थी। उस बेचारी ने भी क्या किस्मत पाई थी। अब्दुल्ला आसमान की तरफ मुंह उठाकर कहने लगा, अब तो मुझे दिन में भी काहरा जाने के ख्वाब नजर आते हैं। हर लम्हा, हर पल, दिन हो या रात, उसके कानों में बस एक ही सदा आ रही थी कि काहरा आ जाओ, काहरा आ जाओ। दोस्तों, काहरा मिस्र का दारुल हुकूमत था। उन दिनों बड़ा खूबसूरत और एक दौलतमंद शहर हुआ करता था। उसे एक आवाज कहती थी, काहरा आ जाओ, तुम्हारा नसीब बदल जाएगा, तुम्हारे दिन भी फिर जाएंगे, दौलत तुम्हारे कदम चूमेगी, बीवी फटे पुराने कपड़ों की बजाय रेशमी अतलस के कपड़े पहनेगी, तुम्हारे बच्चे शहजादों की तरह जिंदगी गुजारेंगे, मजे मजे के लजीज पकवान खाओगे। इस खंडर में रहने की बजाय तुम्हारे पास खुद का महल होगा। मगर थोड़ी देर के बाद वो हकीकत की दुनिया में वापस आ जाता और सोचता कि मेरी बीवी गुलनार ठीक ही तो कहती है, ख्वाब तो ख्वाब ही होते हैं, ख्वाबों की भला क्या हकीकत होती है। सिर्फ ख्वाब देखने के बाद काहरा जाने का मुश्किल सफर करना सरासर नादानी के सिवा कुछ नहीं है। भला ख्वाब देखने से भी कभी किसी के दिन बदलते हैं क्या? वो खुद पर दीवानों की तरह हंसने लगता, मैं काहरा नहीं जाऊंगा। फिर वो सूखे फवारे को टेक लगाकर बैठ गया। जाने उस अब्दुल्ला की कब आंख लग गई। फिर उसके कानों में आवाज आने लगी कि काहरा आ जाओ, काहरा आ जाओ। उस गूंज से उसकी आंख भी खुल गई। अब तो उसकी हालत पागलों जैसी हो गई थी। उसके सर पर धुंध सवार थी। अब तो वो दिन में भी आंख बंद करता तो उसे काहरा के महलात और मीनार दिखाई देते थे। अब्दुल्ला का सुकून चैन बिल्कुल भी छिन गया था। अब तो उसे दिन में भी आंख बंद करते डर लगता था। नींद उसकी आंखों से उड़ गई थी। उस बेचारे की हालत काबिले रहम हो गई थी। अब्दुल्ला जिस खंडर की दीवार के साथ अपना ठिकाना बनाकर रहता था, दोस्तों पास एक पुराना मीठे पानी का कुआं था। सुदागरों और मुसाफिरों के काफले अक्सर वहां आकर पड़ाव डालते थे और कई कई दिन तक सुदागर वहीं रुका करते थे। कुएं के मीठे पानी से फैज़याब होते और बगदाद शहर में जाकर तिजारत का सामान खरीदते और नई नई चीजें खरीदा करते थे। अब्दुल्ला काफले वालों के ऊँटों के चारा पानी का इंतजाम करता
ताजरों की शहर बगदाद में रहनुमाई भी फरमाता था। जब कारवां रवाना होने लगता तो काफले का सरदार अब्दुल्ला को उसकी खिदमत के एवज नए कपड़े, खाने पीने की चीजें और कुछ दिनार वगैरह दे देता था। दोस्तों, अब्दुल्ला उन्हें फी ईमानुल्लाह कहकर रुखसत भी कर देता था। इस तरह उसके कुछ दिन आराम से कट जाते थे। मगर काफले रोज रोज तो नहीं आते थे, कभी कभी तो हफ्तों, कभी तो महीनों काफलों का इंतजार करना पड़ता था। इस तरह अब्दुल्ला की माली हालत बड़ी बिगड़ती जा रही थी। दोस्तों, फाकों तक की नौबत आ जाती थी। इत्तेफाक से एक दिन की बात है, अब्दुल्ला खंडर की दीवार से टेक लगाए बैठा था। ताजरों का एक बहुत बड़ा काफला वहां आकर ठहरा। वो दौड़ा दौड़ा गया, काफले के सरदार के ऊंट की नकेल पकड़ी और ऊंट की गर्दन पर वो हाथ फेरने लगा और फिर ऊंटों पर लदे हुए सामान के थैलों को उतारने लगा, जिसमें खुश्क मेवे, बादाम और अखरोट मौजूद थे। सामान उतरवाने के बाद कुएं से मीठा पानी लाकर उसने ताजरों को पिलाया। काफले का सरदार अब्दुल्ला की खिदमत देखकर बड़ा खुश हुआ और उससे वादा कर लिया, ऐ गरीब आदमी, जाते वक्त तुम्हें बड़ा अच्छा इनाम देंगे। दोस्तों, काफले का क़याम काफी दिन तक वहां रहा। सुदागर अपना सामान शहर के बाजारों में लेकर निकल जाते और वहां के बाजारों में खरीदो फरोख्त करते थे। साथ ही खलीफा की खिदमत में वो कीमती तोहफे भी पेश करते थे। फिर जब काफला रवाना होने लगा तो सरदार ने अपने वादे के मुताबिक अब्दुल्ला को अपने पास बुलाया और उसे बहुत सारा इनाम दिया और कहने लगा, आइंदा जब भी हमारा यहाँ से गुजर होगा तो हम तुम्हारे पास ही क़याम करेंगे, तुम्हारे कुएं का मीठा शीरी पानी पिएंगे। अच्छा, खुदा हाफिज, अब हम चलते हैं। अब हम काहरा की तरफ जा रहे हैं। दोस्तों, काहरा का नाम सुनकर अब्दुल्ला चौंक गया। उसके मुंह से बेसाख्ता निकला, काहरा जा रहे हो? सरदार ने जवाब दिया, हाँ भाई, हम काहरा ही जा रहे हैं। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। सरदार कहने लगा, अब हमारा काफला काहरा की जानब सफर करेगा। दोस्तों, अब्दुल्ला को अपना ख्वाब याद आ गया। उसने सरदार से काहरा जाने की ख्वाहिश का इजहार किया कि मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं तुम लोगों की खिदमत करूंगा, मेरा बड़ा काम हो जाएगा, आपका मुझ पे बहुत एहसान होगा। दोस्तों, काफले का सरदार एक लम्हा भर के लिए सोचता रहा, फिर कहने लगा, मेरी एक शर्त है, अगर तुम वो मानोगे तो मैं तुम्हें काहरा ले जाऊंगा। रास्ते में तुम काफले के ऊँटों की देखभाल करोगे, क्या तुम्हें ये शर्त मंजूर है? तो अब्दुल्ला बोला, जी मुझे मंजूर है। दोस्तों, वो तो यही चाहता था कि वो किसी तरह काहरा पहुंच जाए। अंधा क्या चाहेगा दो आंखें। अब्दुल्ला तो फौरी तौर पर राजी हो गया। वो ऐसे मौके की तलाश में था जो कुदरत ने उसे खुद ही फराहम कर दिया था। आखिरकार काफले के साथ वो चुपके से रवाना हो गया और किसी को उसके जाने की कानो कान खबर भी नहीं हुई। अब्दुल्ला ने बगदाद को खैरबाद कह दिया और कारवान के साथ चल दिया। दोस्तों, जाते जाते एक बार उजड़े हुए खंडर को देखा। एक हफ्ते तक उनका काफला रेगिस्तान की रेत पर चलता रहा। कई महीनों की मुसाफत के बाद आखिरकार उनका काफला काहरा की सरहद में दाखिल हो गया। काफले के सरदार ने गेट पर खड़े निगहबानों को अपनी आमद का मकसद बयान किया और उन्हें शहर में दाखिल होने की इजाजत भी मिल गई। अब सुबह हो चुकी थी। काहरा के बाजारों में चहल पहल होने लगी थी। काफले में शामिल ताजर खादमों की मदद से अपना सामान लेकर बाजारों की समत निकल पड़े और उनमें जो मुसाफिर थे वो अपने घरों की तरफ रवाना हो गए। काफले का सरदार भी अब्दुल्ला को खुदा हाफिज कहकर एक जानब चल दिया। जब काफले के तमाम लोग एक एक करके चले गए तो अब्दुल्ला अकेला रह गया। सूरज सर पर आ गया था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था इस अनजान शहर में कहाँ जाए। ऊपर से उसे भूख भी सता रही थी। जेब में तो फूटी कोड़ी नहीं थी। वो सब्र करके ही रह गया। चलते चलते उसे कुआं नजर आया। वहां जाकर उसने पानी पिया तो उसके अंदर कुछ जान में जान आई। बेचारा बेमकसद शहर की गली कूचों में अजनबी निगाहों से एक एक चीज को देखने लगा। आखिरकार सफर की थकान उस पर गालिब आ गई और वो एक मकान के दरवाजे पर बैठ गया। उसे बैठकर वहां पर राहत हुई। बैठे बैठे लेटा ही था कि उसे नींद आ गई। जाने कब तक वो सोता रहा। नींद में ऐसे लग रहा था जैसे कोई तूफान आ गया हो। तेज तेज हवाएं चलने लगी थी। चलो उठो बदमाश, मेरे घर के दरवाजे से उठो,
दोस्तों उसके कानों में एक आवाज पड़ी तो अब्दुल्ला बेचारा चूक कर उठ बैठा। हैरत से आंखें फाड़ कर देखा, सामने कोई खड़ा था। वो लिबास से शहर का कोतवाल लग रहा था। वो गुस्से भरी निगाहों से उसे घूर रहा था। उसके हाथ में एक मोटा सा डंडा था। अब्दुल्ला घबराकर खड़ा हो गया। अब मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? तुम्हें सोने के लिए यही जगह मिली थी क्या? ऐ पागल आदमी, चले जाओ यहाँ से। अगर मुझे गुस्सा आ गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे तुम्हें। दोस्तों अब्दुल्ला बेचारा सहम कर बोला, जनाब मैं थका हुआ था, आपके दरवाजे पर आकर बैठा तो मुझे नींद आ गई, मुझे माफ फरमा दीजिए। मैं बगदाद से यहाँ आया हूँ। तो वो कोतवाल कहने लगा, मुझे पता है तुम बगदाद से यहाँ क्यों आए हो। तुम सब भीख मांगने के लिए यहाँ आते हो। मैं यहाँ का कोतवाल हूँ। मैं बगदाद के लोगों को अच्छी तरह जानता हूँ। पता नहीं कमबख्त कहाँ से चले आते हैं। दोस्तों अब्दुल्ला कहने लगा, जनाब मैं यहाँ भीख मांगने नहीं आया, मैं तो बस अपना ख्वाब। चुप रहो, बहानेबाजी मत करो। दोस्तों कोतवाल को गुस्सा आ गया। उसने डंडा हाथ में लिया और अब्दुल्ला को धकेलता हुआ सड़क पर ले आया। वो बेचारा उसकी मन्नत समाजित करने लगा, मगर कोतवाल ने एक न सुनी और उसे जेल में ले जाकर बंद कर दिया। जेल की कोठरी में जाकर अब्दुल्ला को एक कोने में खामोशी से बिठा दिया गया। फिर चारों तरफ उसने नजरें गंवाई। वहाँ पहले ही उस जैसे कई आदमी मौजूद थे जो किसी न किसी जुर्म में कैद थे। वो सोच में पड़ गया, या खुदा मैं कहाँ फंस गया हूँ। इस ख्वाब के चक्कर ने तो मुझे मुसीबत में डाल दिया है। या अल्लाह मेरी जान बचा ले। मेरी तो यहाँ किसी से जान पहचान भी नहीं है। आखिर मेरी मदद कौन करेगा? मेरी जिंदगी तो कैद खाने में ही गुजर जाएगी। मेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे। इससे तो अच्छा मैं बगदाद में ही था। वहाँ मैं आज़ादी से रहता तो था, अपनी किस्मत पर मलामत तो करता था। दूसरे कैदी उसे हैरत से देख रहे थे। दोस्तों इस तरह कैद खाने में कई महीने गुजर गए। उसे उस दौरान किसी पल चैन नहीं मिलता था। वो ख्वाब जो हमेशा देखा करता था, वो काहरा पहुंचकर उसे एक मर्तबा भी दिखाई नहीं दिया। अलबत्ता वो नींद में बराबर करवटें बदलता था। एक दिन वही कोतवाल कैद खाने में आया। उसने अब्दुल्ला का गिरबान पकड़ा और गुस्से भरी आवाज में कहने लगा, चलो आज तुम्हें काजी की अदालत में हाजिर होना है। वो उसे साथ लेकर काजी के सामने पहुंच गया। काजी अपनी कुर्सी पर बड़ी शान शौकत से बैठा था। उसके खादम पंखा झूल रहे थे। काजी ने एक निगाह अब्दुल्ला पर डाली, फिर अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और पूछने लगा, अजनबी क्या नाम है तुम्हारा? जी मेरा नाम अब्दुल्ला है। तुम कहाँ से आए हो? मैं बगदाद शरीफ से आया हूँ। तुम इतनी दूर से मुशक्कत उठाकर सफर करके आए हो, यहाँ आने का मकसद बयान करो। दोस्तों अब्दुल्ला बोला, आली मर्तबा, मैं सिर्फ एक ख्वाब की वजह से जो दिन रात मुझे परेशान किए रहता है यहाँ आ पहुँचा हूँ। काजी अब हैरत से पूछने लगा, बताओ वो कौन सा ख्वाब है? दोस्तों अब्दुल्ला ने अपना अजीबोगरीब ख्वाब बयान कर दिया जो शब रोज उसे परेशान किए रहता था। वो कहने लगा, मुझे ख्वाब में काहरा के महल और मीनार दिखाई देते थे और एक आवाज सुनाई देती थी कि काहरा चले आओ, तुम्हारी किस्मत चमक जाएगी। मगर अफसोस किस्मत तो नहीं चमकी, यहाँ जेल में तो कैद हो गया हूँ। दोस्तों काजी के दरबार में हाजरीन भी अब्दुल्ला की बातों को दिलचस्पी से सुन रहे थे। काजी ने उन्हें चुप रहने का इशारा किया। एकदम से खामोशी छा गई। काजी ने उससे पूछा, तुम्हारे बीवी बच्चों को पता है तुम काहरा आए हो? तो अब्दुल्ला बोला, नहीं आली मर्तबा, मैं एक काफले के हमरा यहाँ आ गया था। उस बेचारे ने सर झुका लिया। तुम एक नादान और बुज़दिल आदमी हो। सिर्फ एक ख्वाब की बदौलत तुम काहरा आ गए। भला ख्वाब देखने से भी कभी तकदीरें बदलती हैं क्या? मुझे तो तुम पर रहम आता है। फिर वो कुछ सोच कर कहने लगा, अपने बीवी बच्चों को बेयारो मददगार छोड़कर आ गए हो, ये तुमने ठीक नहीं किया। मुझे तुम्हारी बातें सुनकर रहम आता है, इसलिए मैं तुम्हें रिहा करने का हुक्म देता हूँ। साथ ही शाही खजाने से तुम्हें कुछ अशरफियाँ भी दी जाती हैं ताकि तुम बगदाद वापस जा सको और दोबारा काहरा शहर में दिखाई मत देना, वरना तुम्हें कैद खाने में डालकर सख्त तरीन सजा दी जाएगी। काजी ने फैसला सुनाया। सिपाहियों को रहा करने का इशारा किया। फैसला सुनकर अब्दुल्ला की आंखें अश्कबार हो गईं। वो काजी को दुआएं देने लगा जैसे से कुछ याद आ गया हो। वो पूछने लगा, जनाब बगदाद में किस तरह जाऊंगा? काजी ने हैरत से उसकी तरफ देखा और अपनी दाढ़ी पर दोबारा हाथ फेरा और कहने लगा, अब ये तुम्हारा मसला है, तुम कैसे बगदाद वापस जाते हो?
मैं तो इतना जानता हूँ, तो मुझे काहरा में दिखाई मत देना। अगर तुम मेरी नसीहत पर अमल करोगे और बगदाद वापस जाकर कोई मेहनत मजदूरी करोगे और इस तरह के फजूल ख्वाब देखना बंद कर दोगे तो तुम्हारी किस्मत जरूर चमक जाएगी। दोस्तों, एक लम्हे के लिए काजी रुका और उसे कुछ याद आ गया। फिर वो कहने लगा, सुनो ए अजनबी आदमी, तेरे ख्वाब से मुझे एक बात याद आ गई, वो मैं तुम्हें सुनाना चाहता हूँ। शायद तुम्हें कोई सबक मिल जाए और आइंदा ख्वाब देखने से तौबा करो। दोस्तों, अब्दुल्ला हैरत से काजी को देखने लगा। काजी ने कहा, एक दिन मैं थका देने वाले मुकदमे का फैसला सुनाकर अपने घर आया था। मैं थकन से चूर था, बगैर कुछ खाए पिए अपने बिस्तर पर चला गया। मैं जल्दी ही गहरी नींद सो गया। मैंने भी बड़ा अजीबोगरीब ख्वाब देखा। मैं देखता हूँ कि मैं बगदाद पहुँच गया हूँ, वहाँ की सड़कों पर पैदल चल रहा हूँ। अचानक मेरे सामने एक फटा पुराना खंडर आ गया। झट से अब्दुल्ला बोल पड़ा तो काजी बोला, खामोश बेवकूफ इंसान, बीच में मत टोक। जब तक मैं अपनी बात खत्म न कर लूं तब तक बोलना नहीं। मैंने खंडर देखा, उसके नजदीक ही एक पुराना सा फवारा लगा था जो हमेशा बंद पड़ा रहता था। दोस्तों, काजी ने बात जारी रखी। अब्दुल्ला को अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हुई। उससे रहा नहीं गया, वो फिर बोल उठा, आगे क्या दिखाई दिया? तो काजी कहने लगा, मुझे फवारे के बाजू में एक लाल गोल पत्थर दिखाई दिया और मुझे एक आवाज आई, उस जगह खुदाई कर कर देखो, वहाँ उस पत्थर के नीचे एक लकड़ी का संदूक मिलेगा जिसके अंदर चमड़े की एक थैली है। वो थैली सोने की अशरफियों से भरी पड़ी है। वहाँ एक पुराना खजाना दफन है। हजूर, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। आली मर्तबा, तो आपने वो खजाना हासिल कर लिया क्या? अब्दुल्ला ने बड़ी दिलचस्पी से पूछा। तो काजी कहने लगा, ऐ बेवकूफ आदमी, मैं तुम्हारी तरह पागल नहीं हूँ जे ख्वाब के पीछे बगदाद चला जाऊं। और काजी कहने लगा, ख्वाब का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। दोस्तों, इतना कहकर काजी खामोश हो गया। आपने ठीक कहा है हुजूर, ख्वाब का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। आपका महल तो काहरा में है, भला आप बगदाद मुफ्त में क्यों जाने लगे? अब्दुल्ला ने काजी की खुशामदीद की और दोबारा किसी नई मुसीबत में वो पड़ना नहीं चाहता था। तो काजी भी खुश हो गया और कहा, मुझे खुशी है तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई है। अब जितनी जल्दी हो सके बगदाद वापस लौट जाओ, तुम्हारे बीवी बच्चे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जी हाँ हजूर, मैं आज ही बगदाद रवाना हो जाऊंगा। काजी ने उसे खुदा हाफिज कहा तो अब्दुल्ला उसके महल से निकलकर सड़क पर चलने लगा। जब वो चलता चलता एक गली में दाखिल हुआ और दूसरी गली से निकल गया। काजी ने उसे मंजिल का पता बता दिया था। अब वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगा। दोस्तों, अब्दुल्ला बगदाद की तरफ सफर कर रहा था, लेकिन उसे रास्ते का मालूम नहीं था। लेकिन अब काफी दिन के चलने के बाद उसे एक तजारती काफिला नजर आया। वो काफिले के सरदार के पास गया और उसे मालूम हुआ कि काफिला सुबह बगदाद की तरफ को सफर करेगा। ये सुनकर अब्दुल्ला खुश हो गया और सरदार से कहने लगा, मैं भी आपके साथ बगदाद जाना चाहता हूँ, मेरे पास कोई सवारी नहीं है। वो सरदार एक रहमदिल इंसान था। उसे अब्दुल्ला पर रहम आ गया। उसने कहा कि अगर तुम हमारे तजारती सामान और ऊँटों की देखभाल करोगे तो उसके इवज हम तुम्हें बगदाद ले जाएंगे। दोस्तों, काफी दिन सफर करने के बाद उन्हें बगदाद शहर की दीवारें नजर आने लगी। उसके बाद बुलंद दरवाजा दिखाई दिया। काफिले वहाँ रात आकर रुक गए। दोस्तों, अब्दुल्ला सरदार से रुखसत लेकर अपने पुराने खंडर की तरफ चला गया। अभी तारीकी छाई हुई थी। थोड़ी देर के बाद चांद बादलों में से निकल आया। अब्दुल्ला का बस नहीं चल रहा था कि जल्दी से खंडर के पास पहुंच जाए और जहां पर बंद सूखा फवारा पड़ा था वो जल्दी से उसकी तरफ बढ़ने लगा। सब्र का दामन हाथ से बिल्कुल छूट गया था। अब्दुल्ला सूखे फवारे के पास पहुंच गया। उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई थी। उसकी नजर फवारे के पास ही गोल लाल पत्थर पर पड़ी जिसका जिक्र उसने काहरा में सुना था। फिर उस पत्थर पर खड़े होकर वो रोजाना लोगों को दुखड़ा भी तो सुनाया करता था। ये एक मामूली आम सा पत्थर था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इसके नीचे दबा हुआ कई बरसों पुराना उसे खजाना मिलेगा और उसकी किस्मत चमकने वाली है। दोस्तों, जब पिछले पहर का वक्त हुआ, अब्दुल्ला ने खामोशी से आसपास नजर घुमाई कि कोई उसे देख तो नहीं रहा कि अब जो वो करने जा रहा था वो बिल्कुल राजदारी का काम था। वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि किसी को उसकी कानों कान भी खबर हो। वो बड़ी बेसब्री से एक कुदाल के साथ उस पत्थर को तोड़ने लगा। दोस्तों, काफी कोशिश के बाद उसने पत्थर को तोड़ डाला
उसे उसके नीचे कुछ नजर आया। उसके हाथों में न जाने कहां से ताकत आ गई थी। वो दोनों हाथों से मट्टी की तह हटाने लगा। खोदते खोदते वहां एक गड़ा नमूदार हुआ। अचानक उसके हाथ की उंगलियां किसी चीज से टकराईं। चांदनी रात में उसका जाला फैल रहा था। रोशनी में से लकड़ी का पुराना संदूक दिखाई दिया जो कि काहरा के काजी ने बताया था। जल्दी से उसने उसके ऊपर मिट्टी से साफ किया। संदूक ज्यादा बड़ा तो नहीं था, लेकिन उसने गड़े से बाहर निकाल लिया। संदूक में एक पुराना ताला लगा हुआ था जिसे उसने कुदाल के साथ तोड़ दिया। उसने संदूक को एहतियात के साथ खोला। उसके अंदर एक चमड़े की थैली थी। अब्दुल्ला ने बेचैनी से चमड़े की थैली को जब संदूक से बाहर निकाला तो थैली काफी वजनदार थी। थैली का मुंह चमड़े से बंद हुआ था। थोड़ी सी कोशिश से वो खुल गया। जब कोई चीज थैली से निकलकर उसके पांव पर गिरी तो अब्दुल्ला की नजर पैर पर पड़ी। वो सोने का एक सिक्का था जो चांदनी रात में चमक रहा था। ये देखकर अब्दुल्ला की तो बाछें ही खिल गई। उसे काहरा के काजी की बात याद आ गई। जिस ख्वाब को वो मजाक समझता था वो बिल्कुल सच हो गया था। बगदाद वापस आते ही दौलत उसे मिल गई थी। उसके दिन बदल गए थे। दोस्तों, चमड़े की थैली सोने की अशरफियों से भरी हुई थी। अब्दुल्ला ने थैली में हाथ डाला और मुट्ठी भर अशरफियां बाहर निकाली। उसने देखा कि अशरफियों के साथ हीरे जवाहरात और मोती भी शामिल हैं। उसने चमड़े की थैली बांधकर कंधे पर रखी और खामोशी से खंडर की तरफ चल दिया। खंडर से थोड़े फासले पर एक दरख्त की आड़ से खलीफा के जासूस अब्दुल्ला की सारी हरकत को देख रहे थे। जब अब्दुल्ला वहां से चला गया तो दोनों जासूस दरख्त की आड़ से बाहर निकले और फवारे के पास जमीन को खोदने लगे। फिर वो खामोशी से खलीफा के महल की तरफ लौट गए। दूसरी तरफ अब्दुल्ला खंडर में दाखिल होकर अपनी कुटिया के दरवाजे पर आया और आहिस्ता से अपनी बीवी गुलनार को पुकारने लगा। गुलनार कुटिया से बाहर निकल आई। उसके चेहरे का रंग बदला हुआ था। क्यों चिल्ला चिल्ला कर आसमान सर पर उठा रहे हो? इतने दिन से तुम कहाँ गायब थे? डूब मरो अब्दुल्ला। दोस्तों, वो नरम लहजे में कहने लगा, अब हमें किसी काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे हाथ बहुत बड़ा खजाना लगा है। आज से हम अमीर हो गए हैं। तुम मुझे कामचोर और नखट्टू कहती थी ना, देखो मेरे पास कितना खजाना है। अब मैं बगदाद का मालदार तरीन आदमी हूँ। इतना कहकर अब्दुल्ला ने चमड़े की थैली पर हाथ फेरा और उसमें से एक सोने की अशरफी निकालकर अपनी बेगम को दिखाई। उसकी चमक देखकर गुलनार अपना गुस्सा भूल गई। वो कभी अब्दुल्ला को देखती तो कभी अशरफी को देखती और कहने लगी, मैं तो तुम्हें एवी निखट्टू समझ रही थी, तुमने तो वाकई खजाना हासिल कर लिया है। दोस्तों, दूसरे दिन अचानक खलीफा के सिपाही खंडर में आए और अब्दुल्ला को गिरफ्तार करके खलीफा हारून रशीद के सामने पेश कर दिया। खलीफा हारून रशीद के सामने जाकर अब्दुल्ला ने शुरू से लेकर आखिर तक अपना ख्वाब सुना दिया और उसने बताया कैसे उसे काहरा के काजी ने ये बात बताई थी। दोस्तों, ये बात सुनकर खलीफा हंसने लगा और कहने लगा, नादान आदमी, तू एक ख्वाब देकर खामोश बैठा रहता था और अपने नसीब को रोता रहता था, मगर जब तूने हरकत की और अपनी अकल का इस्तेमाल किया तो देखा कुदरत ने तुझे उसका सिला भी दे दिया। अब तू समझ गया कि हरकत में बरकत है। बेकार बैठे रहने से कुछ हासिल नहीं होता। इंसान को हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए, ना कि काहलों और सुस्त आदमियों की तरह बैठकर अपने नसीब को रोना चाहिए। दोस्तों, बादशाह ने कहा, ये सारी दौलत जो तुम्हारे हाथ लगी है ये सब तुम्हारी ही है। दोस्तों, अब्दुल्ला वो सारी अशरफियां लेकर दरबार से रुखसत हो गया। थोड़े दिनों के बाद अब्दुल्ला ने बगदाद शहर के उसी चौराहे पर रेशमी कपड़ों की दुकान खोल ली। एक प्यारा सा महल भी बनाया। खंडर को उसने खैरबाद कह दिया। अब वो रात को चैन की नींद सोता था और अब अब्दुल्ला बगदाद शहर का अमीर तरीन कपड़े का कारोबारी बन गया था। उसका शुमार बगदाद के अमीर तरीन लोगों में होता था। दोस्तों, सच ही कहते हैं कि हरकत में बरकत है। ऐसे फजूल बैठे रहने से कुछ हासिल नहीं होता। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। शुक्रिया।